today we are going to start with Spring Security. Is my screen visible to you all, guys? Okay, now I'm sharing my screen. Let me know if it is visible. Now I hope it is visible, right? तो आज का टॉपिक क्या है? Spring Security, ठीक है? अब what I mean by Spring Security is all this while when we were trying to hit any endpoint. So let's say I was hitting localhost, whatever is my port number, slash all products. So what was I? Now I'm talking about the controller, okay? I'm talking about the controller, not REST controller. So what would happen if I would hit this endpoint on a browser having controller as add controller? What would happen? It will return us with a web page, right? And all the details would be there on this web page, correct? Something of this nature. Yeah, we are using controller, right? So something of this nature. So I would go and hit the endpoint and it would show me the ओपन नहीं हुआ क्या? एक पेज ओपन नहीं हुआ। मैं तो ओपन किया था, लग रहा था कुछ। So it would show something like this. Okay, so I would hit the endpoint and directly it will show me the web page of that endpoint, correct? So here anybody who has the link, anybody who has the URL can access my application, correct? Because my application is live on the server. It is normal local host. Let's say we are live on the server. So we are, let's say, www.abc.com. Okay, we are this. Now this website is live, is running, and if anybody gets hold of the URL, he can access the details. But now here I want to add security. I want only the users who are registered on my website, only they should be able to access it, not everybody else. Then what to do? So I have to add security. Okay, so by security we have two terms which are ambiguous: authentication and authorization. What are the two terms in security? Now let's try to understand these two ambiguous terms in detail. So let me open up this page. Okay, so this is some person who's done a booking. Let's say his name is Jack. So Jack has done a booking for a stay in a hotel. So the day which Jack has done the booking for, Jack will go and meet whom in the hotel first thing? Which counter will Jack go to? Reception, right? Over here. And the reception will ask Jack, may I have your booking ID? Okay, so Jack will present nowadays it's all on the phone, in the phone, right? So he will show his phone. Earlier you had to carry a printout. So if he has a printout, he will show a printout. So soft copy, hard copy, whatever
is there, he will show his booking ID. Let's say his booking ID is ABC123. Okay, next the receptionist will say that a OTP has been, okay, then she might also ask for some documents. Can I have your Aadhaar card to validate your identity? So then he will show the Aadhaar card, so either in phone or in printout, whatever, or in original. Okay, this is, she wants it in original. So in the document they have mentioned you have to carry the original Aadhaar card. Like when you're going to the airport and you want to board a flight, you cannot take a printout of your Aadhaar card. You have to take your original Aadhaar card. So this he has to carry in original. And then she says, okay, an OTP has been sent to your registered mobile number. Please share the OTP. So now Jack will open his phone and he will say, okay, this is the OTP. Now all this has been validated, so authentication has been successful. What has been successful? So what the receptionist is doing is she is authenticating the user. If the user gives the right credentials, if the user gives the correct, then what will happen? Authentication successful. Okay, so there might be another case of fraud, that some imposter, let's say he has got hold of the printout, some person, let's say John. Now John has got hold of Jack's printout. So now who is going in the hotel? John. So he says, the receptionist says, okay, can I have the booking ID? He will say, okay, booking ID is ABC123. He will give the printout. When she says, can I have your original Aadhaar card and the OTP, will he be able to provide? No. So in this case, what has failed? Bad credentials. What has happened? Bad or incorrect credential. So what has failed then? Authentication has been failed. And then what will the receptionist do then? Okay, she might take actions. So she might call the cops and she will say, okay, this chap is trying to enter our premises, blah blah blah, right? So the HTTP status code which occurs in authentication failure is 401. Okay, so which is the HTTP status code which will occur now? So that can occur due to missing credentials, invalid credentials, or expired credentials. Okay. So let's say this booking had a 1 year validity. This booking which Jack had made had a how much validity? So in within a year he can come and stay in the hotel. So Jack comes after, let's say, 1.5 years. Now even though he is a genuine customer, correct? But will they allow him in? No. Why? Because the credentials have expired. In John's case, the credentials were invalid. And if Jack has come and Jack has not bought his mobile phone or the Aadhaar card, then what happens? Missing. So in either of these cases, you will get a 401, which actually reads unauthorized. Okay, so don't. This is a misleading message. It actually reads what? Unauthorized, but you have to interpret as, okay. So don't be confused in the message. 401 reads what? But you have to interpret as unauthenticate. So you can be unauthenticated in these many ways. Okay, now let's come back to the original setting, that it is Jack and he has come on time and everything is as per the plan, everything successful. So the receptionist will call some employee and will give the keys to that employee and say, please escort Jack to
room number 404. Okay, so whatever, room number 201. So Jack will be escorted to room number 201. He will place his luggage over here in this room. Okay, and he can stay over here. Then let's say it's evening time. Then Jack wants to have his dinner. He can go to the cafeteria or dining hall, correct? What is this? This is the dining hall cafeteria. This is his room, right? Okay. So the third thing. So he can go to the dining hall and he can go to the room. Okay. Now this gym. Now Jack is a gym freak. Okay, he works out. So he in the morning he packs his gym bag and then he heads towards the gym. So at the gym there is a security escort is there. Okay, security escort will say, "May I have your booking ID?" So Jack will tell him it is ABC123. So he will look up in his system and he says, "Jack?" He says, "Yes, right, Jack." So he says, "Jack, the booking which you have made is a very basic booking which entitles you to access only to the room and to the dining hall. Apart from that, any other service is extra chargeable." So now, even though Jack is a authenticated user, is he being allowed to access the gym? So this is called authorization. This is called as, your authorization has failed. What has failed? Failed. So even though after authentication, you might be restricted to what all you can view. So similarly, if the owner of this hotel had come, okay, the owner of this hotel had come, he's authenticated, everybody knows he is the owner, correct? Can he access the rooms? Yes, no, maybe. Huh? No. The owner wants to stay in the hotel for a night. So will he be authenticated? Then, अरे अब्दुल शकूर क्या कर रहा है यार? So the owner, he will be given access to a room, right? Any room, room number. Jack was given 201. He will be given some personal suite 701. Yes or no? Then if the owner wants to go and have food in the dining hall, can he be given access? Yes or no? If the owner wants to go and work out in the gym, can he go and access? So will anyone stop the owner of that hotel? No, right? Because he has entire authorization, correct? But if the person who has enrolled only for a basic plan has access only to the room and dining hall, he will not be allowed to access the other services, correct? Okay, so let me give you one more example. Maybe that will help us. See here, this is Netflix plan, okay? And these are the subscribers. So Alice मोबाइल नंबर इज लास्ट में क्या है, 3 डिजिट 222, और उसने कौन सा प्लान लिया है एलिस ने? मोबाइल प्लान लिया। मोबाइल प्लान में उसको सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने मिलेगा, सिर्फ किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर, करेक्ट? और बेन ने कौन सा प्लान लिया है? बेसिक। बेसिक प्लान में उसको कहाँ देखने मिलेगा? लैपटॉप पे। और क्रिस ने कौन सा प्लान लिया है? स्टैंडर्ड पे क्या देखने मिलेगा उसको? टीवी, ठीक है। और एक चौथा और प्लान हो जाएगा, लेट से डेविड ने लिया है प्रीमियम प्लान, तो डेविड को कहाँ कहाँ देखने मिलेगा?
बट उसको मिलेगा 4K में। किसे मिलेगा? 4K में मिलेगा, ठीक है ना। सो अब अगर मैंने नेटफ्लिक्स में लॉग इन किया, netflix.com पे मैं लॉग इन किया और मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया 8881111222 और मेरा पासवर्ड डाल दिया मैंने, ठीक है, जो भी पासवर्ड रहेगा मेरा। अब इज दिस ऑथेंटिकेटेड? है ना, ये अपने पास कस्टमर। तो ऑथेंटिकेशन पास क्या फेल? ठीक है, वो एक ओटीपी भी और ज़्यादा प्रूफ करने के लिए वो क्या करेगा, एक ओटीपी भेजेगा ये नंबर के ऊपर। ओटीपी आप डालोगे तो आप ऑथेंटिकेट पास हो गए। अब आपको वो मूवी सिर्फ कहाँ देखने मिलेगी? फ़ोन पे। अभी अगर आप ये सेम आईडी लेके टीवी से, स्मार्ट टीवी से लॉग इन करो, ठीक है, आपको ओटीपी आएगा, तो आप ओटीपी डाल दोगे तो क्या हो गया आपका? पास। बट अभी अगर आपको ये मूवी फेल्ड कहाँ से आएगा? ऑथेंटिकेशन पास हो जाएगा, पर आप जब मूवी पे क्लिक करोगे, कोई भी मूवी के आइकॉन पे आप क्लिक करोगे, आपको देखने देगा वो मूवी को? वो क्या बोलेगा? प्लीज अपग्रेड योर प्लान। क्या बोलेगा? यू हैव मोबाइल प्लान। क्या बोलेगा? यू हैव मोबाइल प्लान, प्लीज अपग्रेड योर प्लान टू व्यू द मूवी ऑन योर टीवी, है ना। फिर आपको देगा वो कि मंथली प्लान इतना है, ईयरली प्लान इतना है, ठीक है। आपको वो ऑप्शन दे देगा कि अगर आप $149 देते हो तो मंथली हो जाएगा, $999 देते हो तो आपको एनुअली मिल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, या रुपीज़ दे देगा जो भी। तो वो अलाउ कर, इवन दो ऑथेंटिकेट सक्सेस हो गया, पर वो अलाउ कर रहा है कि देखने दिखाने के लिए मूवी। तो यहाँ पर क्या फेल हुआ है? ऑथोराइजेशन फेल, ऑथोराइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो इवन दो यू आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, डोंट हैव द अथॉरिटी टू व्यू दैट। ओके, लेट मी गिव यू ऑल वन मोर एग्जाम्पल। देखो ये, अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ठीक है। तो अब इसमें दो लोग हैं, ये है जेठालाल जो कि ओनर है, और ये है उसका सेल्समैन बागा। अब जब जेठालाल लॉगिन करेगा उस एप्लीकेशन के अंदर, तो कैन ही क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड? ही कैन फायर ऑल द कॉर्ड ऑपरेशन, ही कैन फायर क्रिएट, इट, अपडेट, डिलीट। क्यों? क्योंकि उसका रोल है, तो हम लोग करते हैं रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन। हम लोग क्या करते हैं? ऑथोराइजेशन। ये किस पे होता है ऑथराइजेशन? रोल बेस पे होता है। तो जो जेठालाल है उसको रोल क्या मिला है? ओनर। और ओनर रोल को आपने क्या प्रिविलेजेस दिए हैं? और जो दूसरा यूजर है वो भी जेन्युइन यूजर है, उसको हमने क्या रोल दिया है? तो अगर वो अभी हिट करेगा स्लैश amazon स्लैश एड प्रोडक्ट, अलाउ करेंगे उसको? नो। ये नो वाला कौन है? ये सब फोन वाले हैं, ये जितने नो वाले ये सब फोन वाले हैं, ये सब। एड प्रोडक्ट इज पोस्ट एपीआई, राइट? So they both are having the post privileges, so they both will be allowed to add. Now if I want to get the products, so they both get product? So if he says get product and he wants to give product number one, will both be allowed? But if now Baga tries to delete a product, okay, you want to delete a product one, will he be allowed? No. And what will he get? He will get 403 forbidden. What will he get? तो फॉरबिडन का मतलब ये है कि आपको ऑथोराइजेशन फेल हो गया। क्या फेल हो गया? फेल, यानी आपको वो एंड पॉइंट एक्सेस करने की प्रिविलेजेस नहीं है। तो 401 और 403 में क्या डिफरेंस हो गया अभी? इसको क्या बोलते हैं?
बोलते हैं वो लोग अनऑथोराइज्ड है। आपको पढ़ना क्या है इसको? हाँ, तो ये ऑथेंटिकेशन फेलियर पे आता है, ऑथराइजेशन फेलियर पे फॉरबिडन आता है, फॉरबिडन। ये डिफरेंस समझने का, ठीक है। तो 401 क्या है? तो ये अनऑथोराइज्ड है और ये 403 फॉरबिडन है, राइट। ओके, तो ये डिफरेंस समझ में आया तुम लोग का अभी यूसेज का? ओके, अब ये क्या करना है अभी? हम लोग अर्लियर क्या करते थे? हम लोग अर्लियर डायरेक्ट जब हम लोग हिट करते थे कोई भी एंड पॉइंट, तो क्या आता था? वो एंड पॉइंट हिट किए डायरेक्टली पेज आ गया ना। तो वॉज देयर एनी ऑथेंटिकेशन? वॉज देयर एनी ऑथेंटिकेशन हैपनिंग ओवर हियर? कि भाई आप कौन है, आपका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, कुछ पूछ रहा था क्या वो? नहीं ना। अब जब हम लोग जैसे सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे ना, सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी, तो क्या हो जाएगा? एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ऐड हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो अब आप जैसे ही कोई एंड पॉइंट को हिट करोगे, जैसे ही आप कोई एंड पॉइंट को हिट करोगे अभी, तो एक फॉर्म खुल जाएगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी खोल देगा उसको। अपने को उसको कोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करनी है बस। क्या ऐड करनी है? स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्टर, ठीक है। आपको सिर्फ ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है फॉर्म एक्सएमएल में जाके। उसके बाद डिपेंडेंसी ऐड करने से पहले ऐसा होता है, आप एंड पॉइंट को हिट करो डायरेक्टली रिटर्न आ जाएगा, जो हमारा अब तक आ रहा था। सिर्फ आप डिपेंडेंसी ऐड कर दो, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आप सेम एंड पॉइंट को हिट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा? बीच में क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट। अभी और इंटरसेप्ट कर लेगा उसको एक फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग का डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, तो अपने को क्या पूछेगा? यूजर नेम पासवर्ड। डिफॉल्ट जो यूजर है वो है यूजर, क्या नाम है? ओके, अब बचा क्या? पासवर्ड, ठीक है। आपको एचओडी से कुछ काम है, लेट से आपको एचओडी से कुछ काम है, कुछ साइन लेना है आपको। तो सबसे पहले आप कहाँ सर्च करोगे एचओडी को? बोलो। लिखा है अब्दुल शकूर? कहाँ सर्च करेंगे उसको? एचओडी कैबिन। अगर वो वहाँ फाउंड हो जाती है, विल यू सर्च अहेड? यू विल टेक द सिग्नेचर एंड यू विल गो। अगर वो वहाँ फाउंड नहीं होती है, फिर आप कहाँ सर्च करोगे? कोई ना कोई क्लास में लेक्चर लेते होंगे एचओडी, बिकॉज एचओडी ऑल्सो टेक्स अ लेक्चर, राइट, इज ऑल्सो अ टीचर। तो आप क्लासेस में देखोगे एफ वाई एस वाई टी वाई, कहाँ ना कहाँ तो मिल जाएगी। वहाँ मिल जाती है आपको, तो आप बोलोगे मैम कैन यू प्लीज़ आई नीड टू टेक योर सिग्नेचर, तो वो साइन कर देगी, यस और नो। और अगर वहाँ भी नहीं मिले तो फिर आप क्या करोगे? यू विल आस्क एनी टीचर कि मैम आई है क्या आज ऑफिस में? मैंने कैबिन में देखा, क्लास में भी देखा, मैम मुझे मिली नहीं। तो वो टीचर बोल देगी हाँ मैम मीटिंग में है प्रिंसिपल के साथ में, वो आपको 12:30 के बाद मिलेगी, ऐसा कुछ बोल देगी, है ना। तो ये 3 स्टेप्स है, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो आपको क्या समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट हम कहाँ सर्च करेंगे एचओडी को? जो उनका डेली बैठने की जगह है वहाँ मिल जाए तो फिर अच्छी बात है, वहाँ नहीं मिले तो क्लास में देखेंगे। वहाँ मिल जाए अच्छी बात है, वहाँ नहीं मिले तो कोई टीचर को पूछ लेंगे। तो ऐसे ही हमको चाहिए पासवर्ड। अभी क्या चाहिए हमको? तो पासवर्ड सबसे पहले वो सर्च करता है ऐसे कोई क्लास है क्या जिसके ऊपर ऐड कॉन्फ़िगरेशन और एनेबल वेब सिक्योरिटी लिखा है।
तो पासवर्ड वो उस क्लास में सर्च करेगा सबसे पहली बात। अगर ऐसी कोई क्लास नहीं है तो वो सर्च करेगा प्रॉपर्टीज फाइल में। कहाँ सर्च करेगा? और वहां पर हमको ये दो सेट करने पड़ेंगे, यूजर नेम और दिख रहा है सिक्योरिटी डॉट यूजर डॉट यूजर नेम, सिक्योर डॉट पासवर्ड, सिक्योर डॉट यूजर डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पासवर्ड मिल जाएगा, है ना। और ऐसा भी आपने कुछ सेट नहीं किया है तो जब आप रन करते हो कंसोल पे तो फिर आपको ये स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड दिखाता है। तो वो एक अल्फा न्यूमेरिक की बना के आपको कंसोल पे दिखाता है। कंसोल पे आपको ऐसा कुछ डालेगा वो, और ऐसा कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक कैपिटल के अंदर जो भी स्मॉल ऐसा भी रहेगा, कुछ भी सब मिक्स, है ना। ठीक है, ऐसे वो कुछ भी एक ऐसा पासवर्ड बना के आपको दे देगा। कहाँ दे देगा पासवर्ड? ये कंसोल पे ऐसा, ठीक है, ऐसा बना के दे देगा। तो ये लास्ट, तो अभी अपने पास ऐसी कोई क्लास है पॉइंट नंबर 1 जिस पे हमने किया हो एनेबल वेब सिक्योरिटी? है कोई क्लास? नहीं है। और हमने क्या ये सेट किया है प्रॉपर्टीज? हमने ये भी सेट नहीं की है हमने, करेक्ट। और तीसरी चीज, तो फिर अभी हमारा पासवर्ड कहाँ मिलेगा हमको? पासवर्ड कंसोल पे दिखेगा, तो वहां से लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है उसको। तो ये उठाने का, यहाँ से कंसोल से उठाने का और उसको यहाँ पर पेस्ट करके जब आप लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। समझा? अब इसमें दिक्कत क्या है ये स्टेप में, अब मैंने स्टॉप किया एप्लीकेशन, वापस रन किया तो नया पासवर्ड मिलेगा मुझे। तो हर रन पे क्या मिलेगा मुझे? नया पासवर्ड मिलेगा। तो अगर मैंने प्रीवियस पासवर्ड शेयर किया है मेरे क्लाइंट के साथ में, वो मुझे फ़ोन करके बोलेगा अरे सर ये तो पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। बोले हाँ शायद हमने रीस्टार्ट किया था एप्लीकेशन तो पासवर्ड चेंज हो गया है। तो मुझे बार बार उसको वो सर्च नया पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा। तो ये इसका एक रिस्ट्रिक्शन है। पर तुमको मैं एटलीस्ट एक डेमो देता हूँ। हम अपने इसमें आते हैं, कौन सा है अपना एप्लीकेशन? अपने यू आई उसी में क्या था ना, पुराने वाले में आपने की थी फर्स्ट स्प्रिंग बूट में, है ना। इसमें अपना यू आई भी था ना इसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। हाँ है ना, ऐसी है ना। ठीक है, तो अभी मैं रन कर रहा हूँ। एच टी टी पी स्टेटस कोड्स को अच्छे से पढ़ा करो। तो 401, 403 और 404 समझ में आ गया ना? अभी क्या करते हैं ये लोग? 404 तो पहले से मालूम था अपने को, रिसोर्स नॉट फाउंड। अब आज 401 और 404 पढ़े, तो इनको अच्छे से रिसर्च करके ना पक्का कर लो। ठीक है, अभी मैं रन कर रहा हूँ। अभी क्या मेरे पास सिक्योरिटी एडिड है? पॉम एक्सेल में सिक्योरिटी डिपेंडेंसी एडिड है क्या, नहीं है? अब तक ऐड नहीं किया ना अपन ने। तो अभी अगर मैं कोई एंड पॉइंट हिट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? तो अब अगर मैं ये एंड पॉइंट जाके हिट करूँ, ये वाला स्लैश अमेजोन स्लैश ऑल प्रोडक्ट्स, तो क्या दिखाएगा मुझे वो? है ना। तो अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या था अपने एप्लीकेशन का? तो चल ही रहा है अभी तक। क्या था? 889, ठीक है। 8089 स्लैश क्या था? अमेजोन स्लैश ऑल ऑल प्रोडक्ट। देखो जैसे मैंने हिट किया डायरेक्टली मुझे आउटपुट आ गया, है ना। ये वाला सिनारियो हो गया ना, ये वाला सिनारियो हो गया। हिट किया डायरेक्टली आ गया, कुछ सिक्योरिटी ऐड है नहीं है। अब अगर मैं सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड कर दूं तो कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी मुझे? ठीक है, तो अपने को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से मैं लेता हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी ऐड की हो जिसमें मैंने, तो लेट्स से ये ले लेते हैं। एक सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी आती है बस, तो वो दिख जाएगी क्लियर तुम्हें।
दिख रहा है ये चार्टर्ड सिक्योरिटी। देखो ये मैं अपने इसमें ले रहा हूँ और अभी ये ऐड कर रहा हूँ बस। तो सिर्फ ये सिक्योरिटी ऐड करने से देखो क्या फ़र्क पड़ेगा अपने इसके अंदर। सेव कर दिया। अगर डेव टूल्स है तो रिफ्रेश भी कर देगा वो। यहाँ को बिल्डिंग कर रहा है। देखो रिफ्रेश कर दिया। अब मेरे पास कोई क्लास है कॉन्फ़िगरेशन में जिस पे मैंने ऐड किया हो एनेबल वेब सिक्योरिटी? नहीं, अब तक तो कोई ऐसी क्लास नहीं जिसपे है ना। तो या फिर मैंने प्रॉपर्टीज फाइल में सेट किया हो कोई पासवर्ड? कार आउट कर रहा है ये लोकल। लोकल किधर है मेरा? लोकल ये रहा। तो कोई है पासवर्ड नहीं है ना? तो फिर मेरा ये कहाँ पर आ गया होगा यूज वो पासवर्ड? कंसोल पे पासवर्ड डालना चाहिए उसने, राइट? तो अगर उसने, तो इसको एक काम करेंगे, रिस्टार्ट कर लेंगे एक बार। ये पुराना स्टार्ट हो गया था ना ये। सिक्योरिटी डिपेंडेंसी अपन ने ऐड की है और प्रोजेक्ट क्लीन भी कर दो तसल्ली के लिए। अब ये मैंने क्लीन कर दिया, इसको क्लीन हो गया। अब रन करके देखते हैं। अब ये रन कर देंगे। अब देखो, आप कंसोल पे देखोगे आपको की नज़र आएगा और जब आप उसको हिट करोगे तो वो एक फॉर्म बीच में डाल देगा। चालू हुआ क्या? नहीं, चालू नहीं हुआ अभी तक, राइट? चालू हो गया। अब मैं जाके हिट कर रहा हूँ, देखो मेरे पेज को जाके वापस, और हिट कर रहा हूँ। अभी देखो वो इंटरसेप्ट कर लेगा। आ गया। डिफ़ॉल्ट यूज़र कौन है और पासवर्ड कहाँ से लाऊँ मैं? अभी जाके देखो कंसोल पे पासवर्ड आया रहेगा। आया? दिखेगा नहीं? तो इसको कॉपी कर और अभी इसको अगर मैं पासवर्ड को कॉपी करूँगा, हिट करूँगा, तो वो मुझे कर देगा ऑथेंटिकेशन और मुझे राउट कर देगा मेरे एंड पॉइंट पे, है ना? अभी अगर मैंने गलत, और इसके साथ में आता है एक लॉग आउट बटन भी आता है। क्या आता है? तो अब लॉग आउट दोगे तो बाहर निकाल देगा। लॉग आउट हो गया। वापस जाके हिट करता हूँ मैं ऑल प्रोडक्ट्स को, तो लॉगिन कर पे भेजेगा मुझे यूज़र। मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया ABC, तो क्या आएगा? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। मतलब क्या आया है? 401 आया है। क्या आया है? 401, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल ख़राब थे। तो आपको डालना पड़ेगा यूज़र और आपको फिर पासवर्ड वो डालना पड़ेगा जो आपने कॉपी किया है, तब वो आपको बताएगा ऑथेंटिकेट। अभी आप यहाँ आ गए, ठीक है? तो ये अपना बेसिक सिक्योरिटी का हो गया। ओके, अब मैंने पासवर्ड जो मैंने डाला था, लेट से मैंने याद रख लिया और मैंने उसको स्टोर कर लिया मेरे पास कि भाई ये पासवर्ड है, और मैंने सारे क्लाइंट्स को शेयर कर दिया कि ये पासवर्ड से लॉगिन करो। अब मैंने एप्लीकेशन स्टॉप कर दिया कुछ वजह से। अब जब मैं करूँगा रीस्टार्ट तो क्या होगा? हर स्टार्ट पे एक नया, इसके लिए लोग डेव टूल यूज़ करते हैं। डेव टूल्स, डेव टूल्स का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने कुछ चेंज करके रिफ्रेश भी किया तो रीस्टार्ट नहीं होता ना, वो सिर्फ इट जस्ट रिफ्रेश। तो आप अपना पुराना पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर स्टॉप करके एक्सप्लिसिटली रीस्टार्ट किया है। फिर अभी नया पासवर्ड आएगा ना? देखो नया पासवर्ड आएगा अभी, राइट? देखो यहाँ पर आ जाएगा नया पासवर्ड। आ गया। अब इसको कॉपी करके देखो और पेस्ट करो।
ये पूरा अलग रहेगा, है कि नहीं अलग। अब इसको लॉग आउट करो, यहाँ से लॉग आउट करना डायरेक्ट पोर्ट के बाद में, डायरेक्ट पोर्ट के बाद में लॉग आउट दे देने का। तो ये लॉग आउट करके बाहर निकाल देगा आपको। लॉग आउट टेक्स यू बैक टू द लॉगिन फॉर्म। ठीक है, अब लॉगिन के बाद कहाँ जाना है बताया क्या अपन ने उसको, क्या अपन ने कोई कॉन्फ़िगर किया है कि लॉगिन सक्सेस के बाद कहाँ राउट करो मुझे। अपने एप्लीकेशन में अपन ने कुछ भी नहीं किया ना अपन ने। तो इसके लिए देखो, अभी मैं सिर्फ लॉगिन फॉर्म खोलता हूँ, उसका सिर्फ लॉगिन फॉर्म। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट लॉगिन फॉर्म ही खोलता हूँ, ये खुलता है, और मैंने अपना डाल दिया यूज़र इधर और पासवर्ड डाल दिया, तो अब वो बताएगा 404। क्या बताएगा अभी वो, कि भाई मुझे लॉगिन के बाद कहाँ जाना है बताया नहीं है आपने मुझे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एंड पॉइंट दे देते कि भाई amazon.com पे जाना है मुझे। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या कर देखो क्या कर रहा हूँ, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन डायरेक्ट लॉगिन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, डॉट ऑल प्रोडक्ट्स है ना, उसने मुझे लॉगिन पे लेके आ गया। तो अब इसको मालूम है कि मुझे लॉगिन के बाद कहाँ भेजना है इसको, राइट। तो इसके लिए अभी 404 नहीं आएगा, डायरेक्ट वो चला जाएगा मैंने ऑल प्रोडक्ट्स पे। और अगर मैंने सिर्फ डायरेक्ट लॉगिन फॉर्म ही खोला, ठीक है, अब लॉगिन को मालूम नहीं है कि कहाँ भेजना है उसको, तो आएगा 404। ये आगे हम सब कॉन्फ़िगर करेंगे भी सक्सेस लॉगिन के बाद कहाँ भेजना है, वो आगे से हम सब करेंगे। तो स्टेज 1 समझ में आ गया सिक्योरिटी का, डिपेंडेंसी ऐड करने से। ओके, अब हम आते हैं इस वाले एग्जांपल में। अब यहाँ पर कितने लोग हैं बिजनेस संभाल रहे हैं, जो 2 लोग हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, इन प्रेमाइज सिस्टम है इनका, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, है ना। ये एक स्टैंड अलोन सिंगल सिस्टम यूजर है, ये सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन है ना। जो इनका जो कंप्यूटर है, जो इनके ऑफिस में कंप्यूटर है, जो सिर्फ उसी पे चलता है, राइट। इनके पास एक कंप्यूटर है, उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है सारे इन्वेंट्री का, जिनको ये दोनों यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सिर्फ किस पे चल रहा है, इसी कंप्यूटर पे ना। सारा डेटा किसके पास है, इसी कंप्यूटर। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगल सिस्टम, सिंगल सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस सिंगल सिस्टम के अंदर कितने यूजर है अभी, 2 यूजर है। तो मैं इनके वैल्यूज को हार्ड कोड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, कि भाई ये जेठा ये यूजर है, ये इसका पासवर्ड है, और ये उसका रोल है, का रोल दे देंगे एडमिन। क्या देंगे रोल उसको अपन, और ये बागा है, ये उसका पासवर्ड है, और ये उसका रोल है। क्या रोल है उसका, तो हम लोग 2 बना देंगे, 2 रोल बना देंगे, एक एडमिन रोल और एक यूजर रोल। तो अगर अभी जेठा ने लॉग इन किया, तो जेठा क्या क्या कर पाएगा, और अगर बागा ने लॉग इन किया तो हम बागा को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो अब ये यूजर आईडी और पासवर्ड क्या कर रहा हूं मैं, हार्ड कोड कर रहा हूँ। क्यों हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं, सिंगल सिस्टम है, उसी लैपटॉप पे चलने वाला है, बाकी ऑनलाइन नहीं चलने वाला है वो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। क्या यूज़ करते हैं, कि अगर आपका जो है हार्ड कोडेड आपको सिंपल यूजर रखने हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये नेटफ्लिक्स वाले केस में कैन आई यूज़ इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, सिर्फ 2 यूज़र रहेंगे क्या, है ना, मिलियंस ऑफ यूज़र रहेंगे। तो इसके केस में हम यूज़ करेंगे डाव ऑथेंटिकेशन। क्या यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डाव मतलब डेटाबेस से आप फेच करोगे यूजर्स की डिटेल्स को। क्या करोगे आप, यहाँ पर इन इन मेमोरी में क्या करेंगे,
इन मेमोरी में क्या करेंगे, हार्ड कोड कर देंगे एप्लीकेशन के अंदर ही, क्या जावा क्लास के अंदर ही हार्ड कोड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अभी अपना ये वाला काम तो हो गया कि हमको कंसोल से मिल रहा है। चलो अभी मुझे कंसोल से नहीं चाहिए और मुझे हर रन के ऊपर भी नया पासवर्ड सेट नहीं करना है, तो फिर क्या करूंगा मैं, प्रॉपर्टी सेट करूंगा। क्या प्रॉपर्टी, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर नेम, है ना। तो मैं यहाँ जाऊँगा और एक प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा। अभी यार अपना ये वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है, इसमें थोड़ा सा जो है ना अलाइनमेंट बहुत गड़बड़ हो जाती है। लोकल प्रॉपर्टीज नहीं है क्या, दिख रहा ही है। तो मैं इन दोनों को अभी, और मुझे अभी ऐड करना पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, मैं इसको वापस मेरे इस पर रिवर्ट कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा एडिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो एक भी आपका स्पेस एक्स्ट्रा हो गया ना YAML में, तो वो पूरा करप्ट कर देता है YAML को। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, Ctrl+Shift/। ठीक है, कमेंट हो गया ये। और अभी मैंने क्या किया, जब वो बोलेगा प्रॉपर्टीज़ पे जाओ तो लोकल, तो लोकल की मेरे पास लोकल प्रॉपर्टीज़ फाइल है ना। अब मैंने क्या बोल दिया, सिक्योरिटी नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। अब जब जैसे मैंने ये कर दिया, तो अगर मुझे HOD मिल जाती है क्लासरूम के अंदर, विल आई गो टू आस्क एनी टीचर। तो अब अगर मुझे यहाँ ही मिल गई है तो विल इट शो ऑन द कंसोल। तो अभी देखो कंसोल खाली हो गया, कंसोल साफ हो गया, कंसोल पे पासवर्ड नहीं आ रहा है। आप चाहो तो रीस्टार्ट करके देख लो। ठीक है, अभी कंसोल पे पासवर्ड नहीं आएगा, तो वो चेक कर लेगा कि भाई मुझे प्रॉपर्टीज़ फाइल से पासवर्ड मिल रहा है, तो मैं कंसोल पे क्यों डालूँ। देखो, तो अब इसमें इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व क्या हो गया। आप 100 बार करोगे रीस्टार्ट एप्लीकेशन को, तो डू यू हैव टू शेयर द न्यू पासवर्ड एवरी टाइम। तो इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बट अभी इसमें फिर भी ऑथोराइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ कि भाई कौन से यूजर को क्या एक्सेस देना है, वो सॉल्व हुआ कैसे में। इसमें अभी हर एक बंदा एडमिन है ना अभी तो। हाँ? हर, देखो आया पासवर्ड, आया कोई नहीं आया। तो अभी मैं जाके हिट करता हूँ मेरे एंड पॉइंट को, तो मैं जाता हूँ स्लैश और बोलता हूँ Amazon ऑल प्रोडक्ट्स। तो अभी वो क्या क्या हो गया इसको, 8090 वो नहीं है क्या, पोर्ट नंबर बराबर नहीं है, 8083 है। इस पर क्या है, पोर्ट नंबर दिख रहा है, कौन से 8083 है, बाकी तो सब बराबर है ना, ये तो सब बराबर है ना, लोकल DB लोकल तो बराबर था ना। हाँ ये तो बराबर है, ठीक है। तो कौन सा मांग रहा है वो, 8083 मांग रहा है वो, 8089 पे मार दिया उसको। ठीक है, आ गया। अब यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, हिट हो गया और चला गया। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि आपको हर रीस्टार्ट पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी यहाँ पर हर बंदा हर काम कर सकता है, हर बंदा ऐड कर सकता है, हर बंदा अपडेट, हर बंदा डिलीट, पर मुझे ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना है ना अभी। तो अभी मैं क्या करूँगा उसके लिए, तो अगर आपको देख लो कि अगर आपके यूजर्स हार्ड कोडेड तो क्या यूज़ करो, और अगर आपके यूजर्स ज़्यादा है तो क्या यूज़ करो, ना ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब ये इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन यूज़ करने के लिए एक और चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझा, अभी ये डायग्राम समझो अभी। ठीक है, सो ये जो है किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। एक्सट्रीम, मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ, राइट से लेफ्ट। तो हु इज दिस पर्सन, चीफ मिनिस्टर। कैन एनी टॉम डिक एंड हैरी गो एंड अप्रोच द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली, नो। ये उस चीफ मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट है, कौन है, ये बोलेंगे उसको। तो चीफ मिनिस्टर डेली इससे मिलता है और ये पूरे काम संभालता है चीफ मिनिस्टर के, राइट। अब ये एक कॉमन मैन है, उसको चीफ मिनिस्टर से कुछ काम है। ठीक है, सो कैन ही गो एंड अप्रोच द चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली,
नो। तो उसको किसने बताया कि ये पीए है, आप इससे मिलो और ये आपका काम कर देगा, राइट? अभी ये कॉमन मैन किसके तलाश में जाएगा? चीफ मिनिस्टर के, कॉमन मैन पर्सनल असिस्टेंट के? तो अब ये पर्सनल असिस्टेंट एक जिम में जिम करने आता है, रोज शाम को 8 बजे वो एक जिम में आता है, ठीक है? कोई भी निम जैसे एबीसी जिम में आता है वो। तो किसने बताया उसको कि ये डेली एबीसी जिम में आता है रात को 8 बजे? तो अभी ये कॉमन मैन कहाँ जाके मिलेगा उसको? कॉमन मैन कहाँ जाके मिलेगा उसको? तो कॉमन मैन एबीसी जिम जाने की रीज़न क्या है? कौन मिलेगा उसको? पर्सनल असिस्टेंट से मिलने की गरज क्या है? काम किससे करवाना है? चीफ मिनिस्टर से, ठीक है? समझ में साइकिल तुम लोग को पूरा ये? तो ऐसे साइकिल देखो, तो अपने को करना है ऑथेंटिकेशन। क्या करना है अपने को? तो अपने को एक क्लास से काम है ऑथेंटिकेशन मैनेजर। कौन से क्लास से काम है? बट मैं एज अ प्रोग्रामर डायरेक्टली इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? बट इस क्लास का एक्सेस एक क्लास के पास है। कौन सी क्लास? हाँ, उसके पास ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट, वो कहाँ मिलेगा आपको? ये क्लास इससे कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली। तो फिर अभी मैं किसकी तलाश में निकलूंगा? बिल्डर। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर का हमको ऑब्जेक्ट मिलता है कॉन्फ़िगर मेथड में। कॉन्फ़िगर मेथड दिख रहा है, कॉन्फ़िगर में दिख रहा है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर। अब ये कॉन्फ़िगर मेथड कौन से क्लास के अंदर है? अडेप्टर। तो फिर मैं एक क्लास बनाऊंगा खुद की, जहां माय लिख दिया, मतलब क्या? यूजर डिफाइंड। दिस इज अ यूजर डिफाइंड क्लास है ना? तो मैं एक क्लास बनाऊंगा और किसको एक्सटेंड करेगी वो क्लास? और मैं फिर किसको करूंगा ओवरराइड? तो अगर मैंने इसको ओवरराइड किया जिसका पैरामीटर ऑथेंटिक मैनेजर बिल्डर है, तो आई कैन डू द टास्क ऑफ ऑथोराइजेशन। और अगर मैंने इसको ओवरराइड किया तो आई कैन डू द टास्क ऑफ, ओके, अगर मैंने इसको ओवरराइड किया बिल्डर वाले को, तो आई कैन डू ऑथेंटिकेशन। और जब मैंने इसको ओवरराइड किया कॉन्फ़िगर वाले एचटीटीपी सिक्योरिटी वाले को, आई कैन डू ऑथोराइजेशन। डिफरेंस? तो अभी व्हाट इज द रीजन ऑफ माय क्रिएटिंग अ क्लास माय सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन? क्या पर्पस है बनाने का? ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर का। किसका चाहिए ऑब्जेक्ट अपने को? ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा अपने को? कौन से फंक्शन में मिलेगा? ये कॉन्फ़िगर ये जिम का काम कर रहा है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर ये पीए का काम कर रहा है, पीए का। और इसके पास है एक्सेस ऑथेंटिक मैनेजर का, वो काम कर रहा है चीफ मिनिस्टर का। तो मुझे उस क्लास के तलाश में निकलना है जिसके पास क्या हो? कॉन्फ़िगर। वो क्लास कौन सी है? कॉन्फ़िगरर। ठीक है, तो मैं अपनी एक क्लास बनाऊंगा और उसको क्या करूंगा? एक्सटेंड्स। और उसको मैं क्या करूंगा ओवरराइड में? किसको करूंगा ओवरराइड? कि दो कॉन्फ़िगर है, इट इज ओवरलोडेड, दो है वो। वेरी गुड। और परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको करना है ऑथेंटिकेशन, तो आप वो कॉन्फ़िगर को ओवरराइड करो जिसका ऑब्जेक्ट, जिसका पैरामीटर है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर।
और अगर आपको करना है ऑथोराइजेशन, उस कॉन्फ़िगर को ओवरराइड करो जिसका पैरामीटर है HTTP सिक्योरिटी। ठीक है, ओके। ये जो क्लास है जो मैंने बनाया है, इसको मैं अनॉट कर दूंगा ये दो अनोटेशन से। कौन से थे वो, कौन से थे याद है? HOD कैबिन, HOD कैबिन किसको याद है? हम्म, तो इस पे वो क्लास लगा देंगे। तो अभी आपने को अगर ऐसी क्लास मिल जाती है तो डायरेक्टली वो वहां से निकालेगा। ठीक है, तो नाउ इफ आई गिव दिस क्लास, विल इट गो टू द प्रॉपर्टीज फाइल? व्हाई नो? हाँ, HOD कैबिन के अंदर ही मिल गए तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं किसी क्लासरूम में। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इसका इशू ये है, हाँ बस एनीवन, अभी इसका इशू ये है कि ये जो क्लास है ना, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर अडेप्टर, ये स्प्रिंग वर्जन 3 में हो गई है डेप्रिकेट। क्या हो गई है? स्प्रिंग वर्जन 3 के बाद से ये हो गई है डेप्रिकेट, यानी ये सपोर्ट खत्म हो गया है इसको। तो अगर आप स्प्रिंग के वर्जन 3 का कोई 3 के पहले का कोई यूज़ कर रहे हो तो आप ये स्टाइल यूज़ कर सकते हो। अगर आप 3 के बाद का कोई कर रहे हो तो प्री वर्जन 3 यानी पहले वाला, तो यू कैन यूज़ व्हाट, बोलो विच व्हाट यू कैन यूज़? ये आप यूज़ कर सकते हो कब, जब आपका वर्जन क्या है, 3 से पहले वाला। अगर आप पोस्ट 3 यूज़ कर रहे हो तो ये क्लास आपको काम नहीं आएगी। तो आपने को थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, तो अपन वो भी करेंगे। ठीक है, अपन दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। पोस्ट वर्जन यू डोंट यूज दिस, यू हैव टू चेंज सम लॉजिक। तो अगर आपको ये वाला लॉजिक पहले यूज़ करना है तो आपको पहले आपके स्प्रिंग बूट के वर्जन को जंप कराना पड़ेगा 3 से पहले के कोई वर्जन पे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा, देखो अभी मैं आ रहा हूँ। सो अभी मेरा कौन से वर्जन पे चल रहा है प्रोग्राम? कौन सा क्या चल, तो अभी मैं इसको जंप करा दूंगा 2.6.0 पे। जैसे ही मैं 2.6.0 पे जंप कराऊंगा तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं 3 के बाद। एक सबसे विजिबल चेंजेस है कि जकार्ता और जावा एक्स का क्या हो गया है। तो वर्जन 2 में क्या था, 2 पॉइंट जितने भी थे उनमें क्या था, 2 पॉइंट कितने थे ना, 2.0.0 जितने वर्जन 2 के शुरू होते थे उनमें क्लास कौन सी थी इंपोर्ट करने की? पैकेज कौन सा था, मेन पैकेज। अब 3 में क्या आ गया था वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ होना आईडी, तो आपका जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट आई डी होता था, याद है? एंटिटी क्लास का आईडी। एंटिटी, जो एंटिटी क्लास है वो कहाँ से आती थी? तो परसिस्ट, और ये अभी अपने को अपना जब था 3.5.8 अपने को कहाँ से आ रही थी? जकार्ता। तो अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं एंटिटी को? नहीं, हम लोग 3.5.8 पे थे ना, तो 3 वाला वर्जन क्या यूज़ करता है ना? तो अभी आपने जंप कर दिया 2 पॉइंट वर्जन पे, तो जकार्ता का सपोर्ट खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे अभी मैं सेव करूंगा इसको, तो जहां जहां आपने जकार्ता यूज़ किया वो एरर देना शुरू करेगा, करेक्ट? अभी देखो मैं सेव कर रहा हूँ उसको, मैं यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन राइट? अब देखो जैसे ही मैं सेव करूंगा इधर वो बिल्ड हो रहा है, और बिल्ड होने के बाद में देखो सारे पैकेजेस जहाँ जहाँ पर जकार्ता है ना वो फटेंगे सारे जब ये बिल्ड हो जाएगा कंप्लीट। अभी तो 48% कंप्लीट हुआ है, जैसे ये होगा 100% कंप्लीट तो पैकेजेस में देखना रेड
क्रॉस आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने को अपने प्रोग्राम को वापस डाउनग्रेड करना पड़ेगा। अपन फिर बाद में वापस फिर से कर देंगे अपग्रेड। देखो आ गए रेड डॉट सारे, आ गए रेड क्रॉस आ गए सारे। अब जाके एक एक को चेक करो कि क्या क्या इशू आ रहा है। तो जाके चेक करो पहले प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो जब आप देखोगे इंपोर्ट्स में, देखोगे इंपोर्ट्स में मालूम पड़ेगा तुम्हारे को। दिख रहा है वैलिड कहाँ से आ रहा था पहले। अब जब मैं इसको निकाल दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट वो करूंगा, ठीक है, मैंने निकाल दिया उसको, तो वैलिड कहाँ से आया। अब जब सेव करूँगा तो इसका एरर निकल जाएगा। इसका एक ही एरर था, वो निकल गया। अब आते हैं DTO में, प्रोडक्शन रिक्वेस्ट आईडी। ठीक है, इंपोर्ट को एक्सपांड करके देखने का काम कहाँ से आ रहा है। देखो ये सब कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या कर दो इनको जावा एक्स, तो डायरेक्ट आप एक कंट्रोल F कर सकते हो, रिप्लेस कर दो जकार्ता, जकार्ता डॉट को, जकार्ता डॉट को किसे रिप्लेस कर दो, जावा एक्स, रिप्लेस ऑल कर दो। हो गया, सेव कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ो इधर एंटिटी में आगे। ठीक है, अब देखो एंटिटी में यू विल कम टू नो, पहले एंटिटी कहाँ से आ रही थी, एंटिटी आईडी कहाँ से आ रहे थे पहले, अब कहाँ से आएंगे। तो जकार्ता डॉट को रिप्लेस किससे कर दो, जावा एक्स रिप्लेस ऑल कर दो, सेव करो। ठीक है, इसका एरर निकल गया। यहाँ भी जाओ, यहाँ भी वही करो, कंट्रोल F। दिख रहा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, जकार्ता डॉट रिप्लेस विद जावा एक्स डॉट रिप्लेस ऑल, सेव ऑल। ठीक है, यहाँ तो सब बराबर है, यहाँ कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ भी कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ लफड़ा है। एरर रिस्पॉन्स में देखो क्या बोल रहा है ये, क्या वो मार रहा है, इसमें क्या तकलीफ है। ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क HTTP स्टेटस कोड नहीं है क्या उनके पास। सेव करता हूँ मैं, क्या हो गया, सारे एरर तो निकल गए रन करते हुए एप्लीकेशन को। Now we have downgraded application to 2.6. We'll try to do this security and then again we'll upgrade it back to 3.5.8. No worries. ठीक है, चालू हो गया, स्टार्टेड हो गया। ठीक है, अब हिट करते हैं जाके। ठीक है, मैं अभी इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट, लॉग आउट करता हूँ मैं। चलो ठीक है, लॉगिन हो गया तो कोई बात नहीं। अभी क्या था, एडमिन एडमिन ना। और अभी सक्सेस होने के बाद कहाँ भेजना है मालूम है क्या आपने को, कॉन्फ़िगर किया अपन ने। लॉगिन सक्सेस के बाद कहाँ भेजो उसको, कहाँ राउट करो। तो ये 404 आएगा अभी। ठीक है, 404 आ गया। अब मैं अगर उसको बोलता हूँ कि मैं मुझे कहाँ भेजना है, ऑल प्रोडक्ट्स पे जा। ठीक है, अब चूँकि सक्सेस हो चुका था ऑलरेडी, इधर आ गया। चलो ये काम कर रहा है। चलो अब अपने स्टेप बाय स्टेप अपना वो काम करते हैं। तो मैंने तुम लोग के लिए एक बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, तुमको शेयर कर दूंगा मैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी है, तो ये डॉक्यूमेंट तुमको मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी एक एक स्टेप कर लेते हैं इसमें। ठीक है, पहले हमने सिक्योरिटी ऐड कर दी। तो अभी मैं क्या क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं क्या क्या बनाऊंगा, क्लास क्या बनाऊंगा जो क्या किसको करेगा एक्सटेंड। तो ये कौन से वर्जन के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी पैकेज है क्या अपने पास।
सिक्योरिटी पैकेज नहीं है तो बना लो पैकेज एक सिक्योरिटी, न्यू पैकेज बना लो डॉट सिक्योरिटी। ठीक है, रिफ्रेश करो, सिक्योरिटी पैकेज अपनी जगह पे आ जाएगा। रिफ्रेश कर लिया, सिक्योरिटी पैकेज अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, इसमें एक क्लास बनाओ, क्या नाम दो क्लास का? कुछ भी नाम दे दो ना। ठीक है, माय वेब सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है। अब जो किसको एक्सटेंड करेगी, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर, दिख रहा है? अब मैं हाउ मेनी फंक्शन आई कैन ओवरराइड, हाउ डू आई चेक दैट? मेरे पास कितने फंक्शन ओवरराइड करने की चांसेस है, हाउ डू आई चेक दैट? इज उमेर दे, how do I check the number of functions I can override now? If I extend a class, how do I check the list of method I can override? Tell me. Yes, Ali, tell me. बोलो, बोलो भाई। कहाँ करो कंट्रोल शिफ्ट, कहाँ करना है? यस, तो मैंने क्या कंट्रोल शिफ्ट हो किया? नहीं, डू कंट्रोल स्पेस बार, डू हाँ, ये करने का तो आपको लिस्ट दे देगा। कंट्रोल शिफ्ट किया मैंने, तो ना विच ऑल डू हैव टू ओवरराइड? कॉन्फ़िगर दिख रहा है ये ले लो, एक कॉन्फ़िगर और कंट्रोल स्पेस बार, कौन सा ले लो? देखो, इसका एक वेब सिक्योरिटी वाला भी है, वो मत लेना, ये लेना। ठीक है, तो अब मुझे अगर करना है ऑथेंटिकेशन में कहाँ करूँ? और मुझे करना है अगर ऑथराइजेशन तो क्या करूँ? ठीक है, तो इसको मैंने दोनों को खाली कर दिया, साफ सपाट कर दिया। अब आते हैं इसके अंदर, तो अभी मैं कौन सा कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम? द इन मेमोरी। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ, तो ये जो है ना ऑथ ऑब्जेक्ट, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या यूज़ करने वाला हूँ? तो क्या बोल दिया मैंने, ऑथ को क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? यूज़र कौन है अपना, पासवर्ड क्या है उसका, अथॉरिटी बोले तो रोल, अथॉरिटी बोले तो क्या, ऑफ रोल्स को बोलते हैं अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे एक एचओडी है, उसके बाद एचओडी का भी रोल है और वो सब्जेक्ट टीचर भी है ना? अगर उसको बना दिया प्लेसमेंट हेड बना दिया, तो अभी एचओडी को ही क्या रोल है? प्लेसमेंट हेड। एक ही बंदे को मल्टीपल रोल्स है ना, उसको सब्जेक्ट टीचर का भी रोल है, उसको एचओडी का भी रोल है, उसको प्लेसमेंट हेड का भी रोल है। अगर उसको बना दिया एग्जाम सुपरवाइजर, तो उसको एग्जाम सुपरवाइजर का भी रोल है। अगर उसको बना दिए अपना कल्चर इवेंट कोऑर्डिनेटर, तो ये सारे रोल्स मिलके क्या बन जाएंगे उसके? तो अथॉरिटीज क्या है उसकी अब तक? एडमिन है। फिर अगर आपको और देना है तो एंड लिखो विद यूजर, उसको अपने अथॉरिटी क्या दिया है? यूजर। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड में एक्सपोज कर रहा हूँ क्या एनक्रिप्ट कर रहा हूँ? तो उसको हम बोलते हैं क्लियर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? कभी भी पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। ये तो अपन ट्रायल कर रहे हैं, इसके लिए अपन दिखा रहे हैं क्लियर टेक्स्ट में,
तो इसके लिए आपको एक बीन ऐड करना पड़ेगा कि भाई मैंने कोई पासवर्ड को जो है ना एनकोड नहीं किया है। तो लास्ट में एक बीन ऐड कर देना, ये दिख रहा है आपके इसी क्लास में, थर्ड नीचे एकदम। क्या ये बीन क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? नो ऑप कोड पासवर्ड, ठीक है ना। हमने कोई पासवर्ड को एनकोड नहीं किया, इसके लिए हमने इसको ही दे दिया। अब अगर मैं रन करूंगा अभी एप्लीकेशन को, तो अभी क्या होगा? विल इट गो एंड टेक द डिटेल्स ऑन द कंसोल? विल इट टेक द डिटेल्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज फाइल? नाउ इट विल टेक फ्रॉम द सिक्योरिटी फाइल, है ना। ओके, अब अगर जेठा ने लॉगिन किया तो जेठा को क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं? और बागा ने लॉगिन किया तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड वाला जो मेरा कॉन्फ़िगर है उसको भी कर दूंगा ओवरराइड कुछ कोड से, ठीक है। इसको समझो, अभी ये सिंपल सा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। देखो, एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट आ गया। फॉर्म लॉगिन के बाद कहाँ भेजना है मुझे? अगर लॉगिन सक्सेस हो जाए, सक्सेस, तो कहाँ भेजूँ उसको मैं? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे ना, ये वाला। तो उसका अपना एंड पॉइंट अपन ने क्या बनाया? एंड पॉइंट अपन ने इसका ये ना स्लैश अमेजोन स्लैश प्रोडक्ट्स। तो मैं अभी यहाँ पर छोटा सा एक कोड लिख रहा हूँ कि जैसे लॉगिन सक्सेस हो जाए तो कार आउट कर दो उसको, ठीक है। लॉगिन सक्सेस के बाद कहाँ भेज दो उसको? यहाँ भेज दो, ठीक है। अब अभी भी मैंने ऑथोराइजेशन बराबर किया नहीं है, कंप्लीट नहीं किया है कि बागा क्या कर सकता है और जेठा क्या कर सकता है। अब तक मैंने वो कंप्लीट किया, इससे मैंने बेसिक बताया बस, ठीक है। अभी सेव कर दिया मैंने, देखो यहाँ पर बॉम्ब मार रहा है ये रेड डॉट से, एक एक्स्ट्रा डॉट, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, ठीक है। सेव कर लो, अभी को रेड डॉट नहीं है। अब रन करो, so you should be able to see that now we log in with these credentials, ठीक है। अब मैंने बोल दिया है लॉगिन सक्सेस के बाद कहाँ भेजना है, तो अभी वो 404 नहीं आना चाहिए, है ना। स्टार्टेड हो गया। अब मैं जा रहा हूँ और डायरेक्टली सिर्फ लॉगिन को हिट करता हूँ। डायरेक्टली किसको हिट कर रहा हूँ? अब मैं क्या डालूँ इधर? हो गया। क्या बोल रहा है ये? पासवर्ड क्या था? स्पेलिंग वो देखा, स्पेलिंग गलत हो गई ना, बहाग हो गई वो, बहाग। तो उसने वो क्या दिखाया मुझे? बैड क्रेडेंशियल दिख रहा है। तो अभी देखो सेव कर रहा हूँ मैं, मेरे पास वो है क्या, डेव टूल्स है ना, हाँ है। चालू हो गया। बागा, बागा 1 2 3 लॉगिन किया। और लॉगिन के बाद कहाँ भेज देगा डायरेक्ट वो? अभी क्या हो रहा है इसको? अभी क्या हो रहा है इसको भैया? ये यूज़र है और ये उसका पासवर्ड। लॉगिन करो। ओके, वो नहीं दिया अपन ने, है ना, वो नहीं दिया, इसके लिए यहाँ से ले ले रहा हूँ। वेरी गुड, सही बात है, एकदम सही बात। इसके लिए उसका उसको ट्रीट ही नहीं कर रहा है वो, है ना। इसके लिए वो एडमिन एडमिन पे, इसके लिए वो एडमिन एडमिन पे जा रहा होगा शायद, है ना। इसके लिए कहाँ जा रहा होगा वो? इसके लिए वो एडमिन एडमिन पे जा रहा होगा, ये बात भी सही है। और अपन ने कोई मैप नहीं किया इसके आगे 4 से, है ना। चलो ये भी प्रूव हो गया अपना फॉर्मूला, कि अपना वो फॉर्मूला सही था, है ना। हम्म। एनेबल वेब सिक्योरिटी अपन ये दिया नहीं ना। इसके लिए उस क्लास को वो कैबिन में नहीं मिल रहा है, छोड़िए।
मैंने वो क्लास बनाई नहीं तो उसको केबिन में नहीं मिल रहा था तो वहाँ जा रहा था वो। हम्म, ठीक है। अब एक बॉम्ब मार रहा है ये बॉम्ब का है मारत रही भैया। ऑल लिस्टेड एक्सेप्शन टाइप्स ऑफ ऑल सिक्योरिटी एनोटेशन वेब सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या बोल रहा है ये डिफ़ॉल्ट ORG कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये। ठीक है, स्टॉप करो, सेव करो, प्रोजेक्ट क्लीन कर लो। जब ये नई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं अपन वर्क क्लीन करके हिट कर दिया करो। PT अब इसको रन करके देखो क्या बम मार रहा है ये। अब रन कर लो, अब ये हिट हो जाना चाहिए। पहला ट्रबल शूटिंग स्टेप ये कर लिया करो। जब भी कंसोल पे कुछ ऐसा अनवांटेड डेटा दिखे तो स्टॉप करके क्लीन करके वापस रन कर लिया करो, तो उससे वो कुछ हद तक सॉर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चालू हो गया, कचरा निकल गया। तो अब हम आते हैं, लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट के बाद कहाँ लेके जाता है अपने को वो लॉगिन पे। और लॉगिन पे आ गया, भागा भागा 1 2 3 लॉगिन किया और आउट कर देगा अपने को। आ गया, लॉग आउट कर देता हूँ। अब डेटा से लॉगिन करता हूँ। अब देखो अभी मेरे पास मल्टीपल यूज़र हो गए ना, तो ये भी आ गया। डेटा भी अभी ऐड कर पाएगा सब कुछ। बट अगर बागा ने ऐड करने गया तो क्या करने का, उसको भी मना करना पड़ेगा ना अपने को। तो उन बागा को ऐड अलाउ करेंगे, ओके, बागा को हम करेंगे अपडेट डिलीट पे, है ना। तो फिर अपना जो ऑथराइजेशन कोड है, ये जो है ना ऑथराइज, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो मेरे पास एक कोड है, उसको अपन इम्प्लीमेंट कर लेंगे। छोटा सा 4 लाइन का कोड है बस, वो समझ जाएंगे। तो वो कोड कॉपी यहाँ पर इसमें रहेगा, वो सेव कर रहा हूँ मैं और हिट करके देख रहा हूँ। देखो यहाँ पर है, ठीक है। अपन ये बड़ा वाला कोड ले लेंगे, देखो। तो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, बहुत इजी है समझने के लिए, तो वो समझ जाएंगे। बेसिक है ना, ये तो बेसिक को हटा दूंगा अभी मैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल का करूँगा। तो मैं अभी ये डाल रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा देखना, ठीक है। जो अपने कौन से एंड पॉइंट अपने को दोनों को एक्सेस करने देने हैं, ऑल प्रोडक्ट्स देने एक्सेस करने दोनों को। तो मैं यहाँ बता दूंगा। और वो अपना क्या था, अमेजोन ना, Amazon/all प्रोडक्ट्स। और दूसरा क्या था, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। जब वो इस पर क्लिक कर रहा था तो कौन सा एंड पॉइंट खुल रहा था, ऐड प्रोडक्ट पे जब क्लिक कर रहा था कौन सा फॉर्म खुल रहा था, ये वाला ना। तो ये भी दोनों को अलाउ करना है, ठीक है। ये भी दोनों को अलाउ करना है। तो फिर अपन ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको अभी सिर्फ तुमको समझने की बात है, ये किनको किनको अलाउड है, जिसके पास भी अथॉरिटी क्या हो, यूज़र भी हो और एडमिन भी हो। बट अपडेट और डिलीट किसको अलाउड है, जब ये वाले दोनों, ये जो अपडेट फॉर्म, ये किसको अलाउड, ये किसको फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये फॉर्म के बाद देखो इसका वो भी है, पाथ वेरिएबल भी है ना। हाँ, क्यों, ठीक है बताओ। खेल लिया अब्दुल अब्दुल एक मिनट, एक मिनट। तो कहाँ थे हम लोग। सो अभी देखो ये अमेजोन फॉर्म, इसके आगे क्या है, प्रोडक्ट आईडी भी है ना, पाथ वेरिएबल। तो वो हमको यहाँ बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो है
आगे जो भी है वाइल्ड कार्ड, ये सब पाथ वेरिएबल है, ठीक है। ये स्टार सा बोले तो पाथ वेरिएबल। और ये जो दूसरा है अपने पास, ठीक है, ये दूसरा है डिलीट प्रोडक्ट, कौन सा था ये वाला है ना, उसके आगे पाथ वेरिएबल है ना, तो वो किसको एक्सेस मिलेगा? जिसके बाद अथॉरिटी सिर्फ क्या होगा? एडमिन, ठीक है। लॉगिन के बाद सक्सेस कहाँ भेजना है? ऑल प्रोडक्ट्स के पास, ठीक है। ओके। और लॉग आउट के बाद फिर से कहाँ भेजना है? लॉगिन को ना, तो लॉग आउट के बाद कहाँ भेजना? लॉगिन पे, ठीक है। और अगर कोई यूजर है, अगर कोई यूजर है और वो डिलीट करने जाए तो क्या आएगा? 403। तो जो 403 आए तो कहाँ राउट करना है? तो हम लोग बोल देंगे हम लोगों ने एक एंड पॉइंट बनाया है, कौन सा? /Amazon/403, तो उसको वहां राउट कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये एक्टिवेट कब होगा ये एंड पॉइंट? तो आफ्टर, तो now what I have to do now? Make an endpoint of 403 where? In the controller. तो यहाँ पर देखो कोड है, आपसे सर्च कर लोगे ना Ctrl+F/403, आपको कोड मिल जाएगा। अब डायरेक्ट उसको डाल दो, दिख रहा है ये? तो ये आप कोड कॉपी कर लो और ये कोड आप डाल दो आपके कंट्रोलर के अंदर, लास्ट में डाल देना, ठीक है। तो /Amazon तो ऐड हो गया। हु इज द प्रिंसिपल? करंटली लॉग्ड इन यूजर है ना। तो अगर बागा ने लॉगिन किया है, बागा ने, तो हमने मैसेज तैयार किया है, हाय बागा, यू डो नॉट हैव प्रिविलेज टू एक्सेस दिस पेज। वो सब किस में आ गया? कौन से वेरिएबल में आ गया? और हम लोग क्या भेज रहे हैं इसको? कौन से व्यू को भेज रहे हैं? तो हम लोग बनाएंगे टेम्पलेट्स में एक व्यू 403 नाम से, ओके। HTML में गए और क्या बनाया? 403 HTML बना। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ से उठा लो, यहाँ पर सर्च कर लो 403.html, आ गया। ये कोड कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ डाल दो। अब ये जो मैंने मैसेज पूरा तैयार किया है, हाय बागा, यू डू नॉट हैव प्रिविलेज टू एक्सेस दिस पेज, ये पूरा कौन से वेरिएबल में आ गया? और वो मैसेज मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिया बस, दिख रहा है? अब अभी आप जाके चेक करोगे, अभी ऑथराइजेशन अभी वो प्रॉपर काम करेगा। तो अभी अगर बागा ने लॉगिन किया है और बागा जाके फिर डिलीट करने जाता है, अलाउ करेगा उसको? कार आउट कर देगा उसको। और 403 अमेजोन क्या कर रहा है? उसके नाम के साथ, है ना। हाँ, तो अभी देखो, अभी इसको यहाँ पर जाके देखो, अभी देखो, अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, वापस फ्रेश लॉगिन करता हूँ। अभी ये प्रॉपर काम करेगा, देखो। तो मैं लॉगिन करता हूँ बागा से डायरेक्ट, ओके। अब अगर बागा डिलीट करने जाए, ये क्या बोल रहा है? राउट नहीं किया क्या अपन ने? राउट तो किया है ना। लॉगिन सक्सेस के बाद भेजना है ना मेरे को /Amazon/all product, हाँ। ऑल प्रोडक्ट्स है क्या? ऑल प्रोडक्ट्स है क्या? ठीक है, क्या है? ऑल प्रोडक्ट्स है। अभी करना पड़ेगा फिर, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इसका इशू आ गया, ठीक है। सेव कर दिया, रिफ्रेश हो गया, ओके, हो गया रिफ्रेश। अब जाते हैं वापस, लॉगिन पे हिट करते हैं, बागा से लॉगिन करते हैं, बागा बागा 1 2 3, लॉगिन करते हैं और आउट कर देगा, हो गया है ना। बागा ऐड कर सकता है ना, देखो ऐड के लिए खुल रहा है, उसके लिए ऐड को कर सकता है।
ऐड कर सकता है, इमेज भी कोई चूज़ कर सकता है, वो जो भी एक इमेज मिल जाए अपने को। कहाँ इधर कुछ इमेज है क्या नहीं, पिक्चर्स में कुछ है क्या नहीं, टाइम पास है अभी कुछ भी नहीं। डाउनलोड्स में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। ये इमेज ले लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट किया, क्या बता रहा है ये, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो गया। छोटा इमेज ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है ये मैक्सिमम लिमिट का परमिसिबल नहीं बता रहा है। ओके, इमेज छोटा लेना पड़ेगा अपने, तो था ना उधर, ये ले लेते हैं आइकॉन। ओके, ऐड हो गया, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब अगर ये करने जाए, डिलीट करने जाए, तो उसको पहले पूछेंगे आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट, जैसे ओके करेगा तो क्या होगा, दिख रहा है, आ गया, आगे दिख रहा है नहीं तुम लोग का, ये मैंने किया ना राउट, और है ना। अगर वो करने जाए अपडेट तो, है ना, अगर जेठालाल करने जाए अपडेट तो, अब इसको लॉग आउट कर देते हैं अपन, इसको लॉग आउट कर देते हैं, जेठा से करते हैं लॉगिन। तो ये लॉगिन हो गया। ये करने जाए डिलीट, ये लास्ट वाला जो डिलीट करना है अपने को, जो कचरा अपन ने ऐड किया, डिलीट करने गया तो उसने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने जाए तो प्राइस 12.99 था, मैंने कर दिया 21.99, तो देखो अपडेट भी हो गया, दिख रहा है। तो अपना इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन हो गया और ऑथराइजेशन हो गया पूरा। समझ में आया तुम लोग को। कल हम लोग करेंगे, कल हम लोग करेंगे डाउ ऑथेंटिकेशन, क्या करेंगे, और वापस अपने वर्जन को जंप कराएंगे 3.5.8 पे, और फिर ये जो है ये निकल जाएगा ना, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, करेक्ट। फिर हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखेंगे कल। मेकिंग सेंस। तो प्रैक्टिस करो, ये सब बहुत काम की चीज़